Hello everyone, welcome back to our channel Khas Study. So this is the third video for tenses and today we are going to cover present perfect tense. Present perfect tense. So welcome to our channel Khas Study. Now beginning with our topic. But before that, if you have not subscribed our channel, please subscribe our channel and do not forget to press the bell icon so that you can get the notifications for the latest videos uploaded by our channel. And if you have not liked our video, please do like it. Now beginning with our topic, present tense, right? If you have not seen the first video, you can just go the description in the description box. The link is given for the first and second video. You can just go and look for that. I'll not explain it again. So we are at the third part of present tense, that is perfect tense. Present perfect. We have already done simple present in first video, present continuous in second video, perfect we are going to do today in this video, and perfect continuous will be in the upcoming videos. So let's begin. But before beginning, I just want to show you the solutions for the present continuous tense practice questions which were given in the last video, in the second video, for which I have already given you link in the description box. These are the solutions. These are the solutions for the present continuous tense practice questions in the second video which were given to you. Right now, beginning with our today's topic, present perfect tense. This is very confusing topic for the students because it, as the definition is written here, present perfect tense expresses the past state of action which has just finished at present. This is very confusing. ये बहुत confuse करता है students को. Why? बिकॉज इसकी देखो आप डेफिनेशन में क्या लिखा है कि ये एक्सप्रेस करता है पास्ट स्टेट ऑफ एक्शन को. पास्ट स्टेट ऑफ एक्शन, ये जो बीच में पास्ट वर्ड आ गया, दिस इज द कंफ्यूजिंग एलिमेंट. तो ऐसा क्यों लिखा है पास्ट स्टेट? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करता क्या है? वो एक्सप्रेस करता है, कहने के लिए वो पास्ट स्टेट है बट क्या बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, वो जस्ट फिनिश हुई है. It has just completed, right? It has just finished. अब for example, suppose आपने अभी अभी lunch किया होगा या फिर you had your meal. So you'll say that I have just finished my meal. I have just finished my meal. या फिर अभी अभी आप होमवर्क करके बैठे हो तो आप क्या बोलोगे? I have just completed my homework. I have completed my homework. Right? I hope you get that. But अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो घबराइए मत, हम आगे एग्जाम्पल्स करेंगे, इनकी फॉर्मेशन करेंगे तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा कि ये होता क्या है. तो देखिए एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें डिपिक्ट करता है उस कंडीशन को जो अभी अभी कहने को पास्ट है बट जस्ट अभी अभी फिनिश हुई है. इट हैज जस्ट फिनिश्ड. इट हैज जस्ट फिनिश्ड. अब मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क. अभी अभी मैंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया. तो है तो ये प्रेजेंट ही ना, कि आपने अभी अभी अपना होमवर्क खत्म किया है. जो उसकी फिनिशिंग है वो प्रेजेंट है, राइट? इसलिए हम इसको प्रेजेंट टेंस के अंडर लिखते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स गिवन है. माई सिस्टर हैज ऑलरेडी मेड अ बिग केक. मेरी बहन ने ऑलरेडी एक बड़ा केक बना लिया है.
You have grown since the last time I saw you. तुम अब उससे काफी बड़े हो चुके हो, जब मैंने तुम्हें पिछली बार देखा था उससे काफी बड़े हो चुके हो. It hasn't drunk the water. It यहाँ पे नॉन लिविंग या फिर नॉन ह्यूमंस के लिए यूज होता है. बाकी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सपोज कोई डॉग कैट, उनके लिए इट यूज होता है. ठीक है. इट हैजंट ड्रंक द वाटर. उसने पानी नहीं पिया. आई हैव सीन दैट मूवी. मैं वो मूवी देख चुका हूँ. तो हम देखिए, हम हिंदी में भी बोलते हैं तब भी है, हूँ, ऐसे वर्ड्स का यूज होता है. तो मतलब वो प्रेजेंट ही डिपिक्ट कर रहा है, प्रेजेंट को ही शो कर रहा है. अभी देखिए, उसने पानी नहीं पिया. उसने पानी नहीं पिया. We haven't received any mail since we are retired. Since we were retired. जब से हम रिटायर हुए हैं हमें कोई भी मेल नहीं मिली. वो एट द प्रेजेंट टाइम तक, अभी तक की बात बता रहे हैं, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है. अभी तक की बात बता रहे होते हैं. ठीक है. दे हैवंट गॉन टू द शॉपिंग सेंटर. वो शॉपिंग सेंटर नहीं गए. हैव दे प्लेड द पियानो. क्या उन्होंने पियानो प्ले कर लिया. नो दे हैवंट प्लेड येट. नहीं, उन्होंने अभी तक नहीं प्ले किया. तो चलिए हम आगे सेंटेंसेस की फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं. आई होप आपको इसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो अब हम आगे सीखेंगे. देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने 3 तरह के सेंटेंस पढ़ने हैं इसमें. एफर्मेटिव, एज यू नो, जो नॉर्मल सेंटेंसेस हम बोलते हैं. नेगेटिव, इंटेरोगेटिव. नेगेटिव हो गया जिसमें नॉट का यूज होता है, जिसमें हम एक तरह से नेगेटिविटी को एक्सप्रेस करते हैं कि नहीं, वर्ब अकर नहीं हुआ, कोई काम अभी तक नहीं हुआ, उसके लिए नेगेटिव यूज करते हैं. इंटेरोगेटिव होते हैं जो क्वेश्चन पुट करने के लिए आप सेंटेंसेस यूज करते हैं. एफर्मेटिव आपके नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं, जो आपकी सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट होती हैं. सो यहाँ पे जो एस टर्म यूज किया गया है यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए है. एस टर्म इज यूज्ड फॉर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज. आई टेल यू कि हैव हैज का यूज कैसे करना है. आप जस्ट यहाँ पे रूल को याद रख लीजिए, आगे मैं आपको बताऊंगी हैव हैज का यूज कैसे और किसके साथ करना है. और पास्ट पार्टिसिपल, ये थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की. थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल. ये यहाँ पे कुछ मैंने लिखे हुए हैं, बाकी कुछ आप आगे देख सकते हैं. You can Google it out or from somewhere else from your books etc. Right. यहाँ पे affirmative का एग्जाम्पल गिवन है. I have tried sushi before. मैंने सुशी पहले ट्राई की है. सुशी को मैंने पहले खाया है, ट्राई किया है. अब यहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए क्या लग जाएगा, सिंपली नॉट लग जाएगा. आई हैव नॉट ट्राइड सुशी बिफोर. नहीं, मैंने पहले सुशी को कभी ट्राई नहीं किया. हैव यू एवर ट्राइड सुशी बिफोर. हैव यू ट्राइड सुशी बिफोर. क्या तुमने पहले कभी सुशी खाई है. सो ये यहाँ पे रूल्स थे फॉर द फॉर्मेशन. यहाँ पे देखिए, एफर्मेटिव प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस के लिए यहाँ पे ही, शी, इट और किसी का नेम, इनके साथ आ जाएगा हैज. ही, शी, इट और किसी का नेम, तो आ जाएगा हैज. ही, शी, इट, नेम, ये तीनों क्या हैं, चारों क्या हैं, थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन सिंगुलर.
ठीक है, उनके साथ हैज आएगा। बाकी जितने प्लूरल होंगे, जितने भी प्लूरल होंगे उनके साथ हैव आ जाएगा, एक्सेप्ट आई, सॉरी मतलब सिंगुलर, जितने सिंगुलर उनके साथ हैज आएगा, जितने प्लूरल है उनके साथ हैव आएगा। बट सिंगुलर में एक्सेप्शन है, आई इज सिंगुलर बट स्टिल उसके साथ आप हैव ही लगाओगे। ठीक है, आई इज सिंगुलर बट उसके साथ हैव ही लगेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया हैज हैव का। सिंपल है। अब तो सब्जेक्ट हमें पता है क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन। हैज हैव भी समझ आ गया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, बाकी प्लूरल के साथ हैव लगेगा। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज जो सेकंड पर्सन का सिंगुलर होता है वो यू ही होता है, तो उसके साथ हैव ही आएगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। और फर्स्ट पर्सन में आई ही आता है, तो आई तो एक्सेप्शन है ही, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के पास हैज, बाकी सब में हैव। यहाँ पे कुछ फॉर्म्स गिवन है पास्ट पार्टिसिपल की, यू कैन आइदर टेक द स्क्रीनशॉट और just have a look on at them. Now moving forward towards negative sentences, बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे देखिए, एफर्मेटिव में हमने किया था कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव और प्लस पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे नॉट आ गया, बस हैज हैव के बाद सीधा नॉट आ गया और कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है। You can take the screenshot if you want for this also. Okay. Interrogative. Interrogative are very simple, so don't get confused or right. Here, has have comes in front. Has have comes in front, subject, then past participle, and simply the question mark at last. Question mark आ जाएगा लास्ट में, full stop नहीं आएगा. This is the mistake which is generally made by everyone. We forget to put a question mark at the end of the interrogative sentences. Has have पहले आ गए, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर पास्ट पार्टिसिपल आ गया। नेगेटिव में क्या था, पहले सब्जेक्ट था हैज हैव, नॉट, पास्ट पार्टिसिपल। एफर्मेटिव में सब्जेक्ट हैज हैव, पास्ट पार्टिसिपल। इंटेरोगेटिव में क्या हुआ, कुछ खास नहीं हुआ, जस्ट ये वाला इसके आगे शिफ्ट हो गया। हैज हैव ने कहा मैं आगे चला जाऊंगा, वो आगे चला गया और बस पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट और हैज हैव ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। हैज हैव और सब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली। हैज ही ट्राइड, हैज ही ट्राइड, अब हमने स्टार्टिंग में किया था ना, सुशी वाला एग्जांपल किया था, हैज ही ट्राइड सुशी, क्वेश्चन मार्क। हैज शी ट्राइड सुशी, क्वेश्चन मार्क। हैज शी कट वेजिटेबल्स, क्वेश्चन मार्क। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस गिवन है, इनके सॉल्यूशंस नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे और प्लीज़ इन्हें ट्राई कीजिएगा, दे विल बी वेरी हेल्पफुल और आपके टेंसेस बहुत क्लियर हो जाएंगे। डू ट्राई दीज क्वेश्चंस, आंसर्स फॉर दीज क्वेश्चंस विल बी इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इनके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। सो दिस वाज इनफ फॉर दिस present perfect. Now next video will be on present perfect continuous. So thank you very much. If you have not subscribed our channel, please subscribe our channel. Don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications for our upcoming videos. And do not forget to hit the like button. Even share the videos as much as you can. Thank you very much.